Welcome to another episode of the Desi Mom Hustles. Joining us today is the insightful and accomplished Dr. Kritika, a dedicated educator, spiritual seeker, and a loving mother. As an esteemed professor at the Department of Law, she has been inspiring and mentoring students from diverse backgrounds for over a decade. With her exceptional administrative skills, effective communication, and creative teaching methods, Kritika has cultivated a stimulating learning environment that brings out the best in her students. But her passions extend far beyond the classroom. She is also a skilled fortune teller, tarot reader, and practitioner of meditation and healing, blending her legal expertise with a deep spiritual curiosity. As a devoted mother of three, she brings a warm and nurturing energy to everything she does. Her multifaceted talents and genuine care for others, that includes me as well, make her a true inspiration. We are so happy to have Kritika with us today. Please join me in giving a big, enthusiastic welcome to the one and only Kritika. Thank you, Tamanna. When you introduce someone ना, it feels तभी एकदम लगता है कि हाँ मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है. You know, it is funny in a way that you are the eighth guest, and all eight guests have given me the same feedback on the introduction because I have never asked anybody for any inputs, right? मतलब जो भी है, I mean, it's also because I know everybody. So I have done my own research, खुद बैठ के लिखा है types. And because we have all ordinary moms abhi tak, so all of them have been so surprised, and everybody has given me the same feedback that, अगर कोई हमें introduce करता है, it feels like, oh, I have done so much in life. So I think that is one of the reasons why this was started with ordinary moms. मतलब हमें कभी पता नहीं चलता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं. We never realize कि अच्छा हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं. But when somebody tells us, "Huh, you're doing this," then you're like, "Acha, I have done so much," and It's that is wow. it is, and that is the reason why I wanted everyday ordinary moms. And somebody had used this term ordinary moms. Matlab, I'm fascinated with that word now. हाँ, we are all ordinary moms. Like कोई हमें ऐसे भाव नहीं देता कि हाँ, you're doing so much. We do crave for that validation and appreciation, but we still don't get it. So we have to make do with our own validation, validation techniques, appreciation techniques. But when somebody, matlab, like every episode till now has had so many viewers, so you realize कि हाँ, I must be making इतना सा छोटा सा एक dent in somebody's life, and making them realize कि हाँ, I can do this. Exactly. So कोई भी जो we'll भी कर come रही to हैं your एक struggles. Let's get to this first. let's get to this first. Talk me through your day, like what your day looks like. Little bit, personally, professionally, your kids, your work, ghar, parivar. I live in a joint family. I live with my in-laws, and I have 3 kids. 2 of them are now in a boarding school from this year onwards. और जनरली सुबह की शुरुआत मेरी 5 बजे से होती थी, which was अभी summers तक हम लोग swimming के लिए जा रहे थे, which is a skill that I've just started learning. I don't know how to swim, so I started this year only. And आके the usual kids का चलता है, स्कूल जाना है, किचन है, आई थिंक वो सेम रहता है सबका कि स्कूल जाना है बच्चों को 7:15 तक, सो दी मॉम्स रश थ्रू एवरीथिंग, भागो भागो. एंड आफ्टर द किड्स आर लाइक सभी चले गए तो आप थोड़ा सा चाय पीते हो, थोड़ा सांस लेते हो, फिर आप सोचते हो आज दिन का क्या क्या है ना. एंड देन बाय 8:30 जनरली आई एम ऑफ टू माय ऑफिस, और वो तकरीबन 1 घंटे का मेरा ड्राइव है. तो और मेरा यूनिवर्सिटी जो है वो रूरल एरिया में है, तो वहाँ की अपनी अलग चीजें हैं और अपने अलग मजे भी हैं. मतलब अगर आप जो कम्यूट है वो बहुत खूबसूरत है. सो देयर आर 2 canals and the road is like between them.
एंड हम लोग वहां से जाते हैं, इट्स ब्यूटिफुल, greenery and everything. So I love that part of my day, आना और जाना दोनों. एंड वहां जाके तो सेम 4 क्लासेस हैं, प्लस आई हैव अ फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एज वेल, तो वो शुरू हो जाता है, फाइल्स हैं, दौड़ रहे हैं, और वर्क प्लेस फ्रेंड्स हैं, जनरल चुगली होती है जो वर्क प्लेस वाली, वो भी हम लोग एंजॉय करते हैं विद अ कप ऑफ टी अराउंड 1. So that is also part of लाइफ, और वो औरतों को करना चाहिए. आई रियली बिलीव इन दैट कि नॉन जजमेंटल अच्छी वाली चुगली जो है, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. अब आप उसे चुगली कहते हैं या जो भी कहते हैं. और हाँ, गॉसिप होना चाहिए, गॉसिप इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड उसके बाद घर पहुंचते हैं अराउंड 4 o'clock, 4:30, एंड देन द सेम ओल्ड kids again, and house routines, chores, that is it. कुछ पढ़ना होता है. आजकल आई एम इनटू माफिया रोमांसेस. So, when and how did you decide that you wanted to pursue a career alongside being a mom? Were you always working without taking a break? I always had this notion that I'm going to work. So the moment the opportunity presented, I was like, I grabbed it. When my mother was working, my grandmother was working, and her mother before her was working. So there was no question of not working. It was just when. So finally, after I was pursuing my master's when I got married, then I completed my doctorate. After that, in between this whole phase, I had 2 kids. And as soon as my younger one turned 1, so first job opportunity, I grabbed it, and yeah. How challenging is it to actually work? Living in a joint family is totally another factor, but then being a mom, especially in today's age, how difficult is it personally for you to, step out and work? What are the challenges? See, you have to make a choice. I always knew that I am not someone who is going to be happy at home. मतलब मैं शायद सबको परेशान कर डाल देती है, तो अच्छा ये था कि मैं जॉब करूं. और दूसरा मुझे ये था कि मेरी डॉटर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए. True. मुझे एक ये कॉन्सेप्ट शायद मेरी मॉम की वजह से ये आया कि अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मॉम रहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं. बिकॉज अल्टीमेटली यू टीच देम कि आपकी लाइफ और आपकी जो जरूरतें हैं वो इतनी अदना है कि वो अपना भी कभी कुछ नहीं सीखेंगे. तो उनको अपनी True. जिंदगी जीना सीखने के लिए जरूरी है कि उनको समझ आना चाहिए कि माई मॉम ऑल्सो हैज अ लाइफ बियॉन्ड अस. True. Correct. सो इसके अलावा चैलेंजेस तो नॉर्मल जैसे रहते हैं, बच्चे बीमार हैं, एग्जाम्स हैं, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस आपको करना ही करना है. आपके But पास वही 24 घंटे हैं, उसमें से आप थोड़ा इधर और थोड़ा उधर कर सकते हो. लाइक in your जैसे मान case, लीजिए you're मेरे also बच्चों के लिए. stepping out to work, which makes it more challenging, I feel. Yes, but then I manage my time. Like when I'm traveling, so I'll be calling up, और जो इस तरह के काम होते हैं जिनके लिए मुझे किसी को कॉल करना है या जो गाड़ी में बैठ के हो सकते हैं, वो सब उसी वक्त रहते हैं. इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा क्लास है जो नहीं हो रहा है, या मेरे पास कुछ समय है, मुझे वर्कशीट्स बनानी है, या मुझे प्लान करना है कि मेरे बच्चे क्या क्या कब कब करेंगे, या उनका इस तरह की जो प्लानिंग वाले इश्यूज रहते हैं, वो सब उस टाइम पे कवर करने होते हैं मुझे. और ऑफिस के काम के लिए भी मेरी कोशिश रहती है कि वहीं खत्म करके आऊं, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार वो घर आता है सब कुछ, तो वो तब होता है. और जॉइंट फैमिली में रहने का एक ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि आपके इन लॉज अगर सपोर्टिव हैं, तो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर यू.
और तो बाय ग्रेस बच्चे ऑफ संभल गॉड मेरे जाते हैं, राइट? इन-लॉज़ काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। हाँ, मतलब एटलीस्ट आपको ये चिंता नहीं होती कि आप बाहर हैं तो वो घर पे क्या कर रहे होंगे और करेक्ट, उनके सेफ्टी को लेके आपको कोई मेजर कंसर्न नहीं होता है। सो दैट इज़ वन थिंग। एक्चुअली बस मुख्य तौर पर जो मुझे बात समझ में आई वो यही थी कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पास वही 24 घंटा है, उसमें आपको मी टाइम भी चाहिए, आपको क्वाइट टाइम भी चाहिए, आपको टैरो रीडिंग भी करना है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो भी करना है और ऑफिस भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। और बच्चों करेक्ट, के लिए हम हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इतने ज़्यादा अ, उनके इर्द-गिर्द मतलब हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में हम लोगों को इतना यकीन है कि हम ये भूल गए हैं कि बच्चों को बोर होना अलाउड है। बच्चों को अपनी कुछ चीज़ें करना अलाउड है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ उनकी मॉनिटर करनी ही करनी है, करेक्ट, कि अभी आप खेलो ही, अभी आप पढ़ो ही। तो कभी-कभी अगर आप उन्हें नहीं करा पाते और कम मार्क्स आते हैं तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, वो कुछ और निकल जाएगा वहाँ से रास्ता। बट वो धीरे-धीरे समझ में आता है विद एक्सपीरियंस। तो 3 what kind of support have you received at your workplace in trying to balance that professional life, career, and family? वुड से दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दिस मैनर। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होती, उस वो सबके यहाँ चलती है। लेकिन मैं कभी उसका इतना शिकार नहीं रही कि भई वो मेरे परिवार के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। तो कुछ अच्छे दोस्त भी वहाँ पर मिले, तो उनका भी सपोर्ट रहा। और एक चीज़ बड़ी जल्दी समझ में आ गई थी कि आप जो है ना रिप्लेस किए जा सकते हैं। मतलब आज मर गए, तो 1 हफ्ते के बाद आपकी वैकेंसी निकल जानी है और कोई सोचेगा अच्छा हुआ मर गई, तो नाउ आई विल हैव द जॉब। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। इनिशियली नहीं आती, क्योंकि आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है कि सरकारी नौकरी मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट अंत में यही एक चीज़ है कि कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है अपने आप में। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं, तो आपको अगर एक टाइम पे आपके पास 5 चॉइसेस हैं, तो यू अल्टीमेटली हैव टू डिसाइड कि इस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है। लाइक व्हेन माय सन वाज़ ही इज़ अ प्रीमैच्योर बेबी एज़ यू नो। सो जब वो पैदा हुआ था, तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उस समय मैंने अपनी जॉब को बिल्कुल दरकिनार किया कि नहीं, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि कब क्या इम्पोर्टेंट है। See, you work with young kids, I mean young adults, not even हुँ, young kids, and young girls specifically. येस, ओनली So गर्ल्स, माय इंस्टीट्यूट इज़ as फॉर वुमेन। yes, young. Matlab, I just wanted to term them as young adults and be gender हुँ, neutral sort of thing. See, when हुँ, you're dealing with young girls, young adults ही हो गए वो, like they are 18 plus mostly. So हुँ। when you look at them, and you look at yourself today. I mean, I'm not talking just about age, but do you feel that difference? कि हाँ, there's a lot of gap in today's upbringing, and then as a human being, like how does that impact your daily maybe frustrations, maybe inspiration कि अच्छा, if they can do this, it's not that bad if they can balance certain things. डिफरेंस तो डेफ़िनेटली है। हम लोग इतने असर्टिव नहीं थे। हम लोगों को इतना शायद अपने ऊपर एजेंसी भी नहीं थी इतनी, इतना अख्तियार ही नहीं था खुद पे। मतलब मम्मी-पापा ने बोला है तो आपको देयर इज़ नो क्वेश्चन्स आस्क्ड वाली चीज़ रहती थी कि आपके पेरेंट्स ने आपको बता दिया अभी करना है। आपके टीचर ने बोल दिया आपको करना है। अभी वाले बच्चों में अपने आप को लेके ज़्यादा दे आर सेल्फ अवेयर, आई वुड से दैट। और कहीं न कहीं वो कुछ चीज़ों में मैं देखती हूँ कि हम लोग उस उम्र में शायद ज़्यादा मैच्योर थे, वो उतने नहीं हैं। ये भी एक है। कुछ चीज़ों को लेके वो बहुत असर्टिव हैं और कुछ चीज़ों को लेके बिल्कुल इतने केयर फ्री हैं कि आप उसे केयरलेस भी अगर कहें तो कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, वो है ऐसा। लेकिन उनको लेके कोई फ्रस्ट्रेशन मुझे आती है, नहीं। फ्रस्ट्रेशन कोई नहीं आती।
बिल्कुल भी नहीं आती बच्चियों को लेके। मतलब अपने कलीग्स को लेके शायद आ सकती है, लेकिन बच्चों को लेके कभी नहीं आती मुझे फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आई गेस उनकी उम्र है, उनको अलाउड है सब कुछ अभी, अपनी बाउंड्रीज को वो चेक करते हैं। जैसे बेबी जब होता है तो वो अपनी बाउंड्रीज चेक करता है, एडोलसेंस में आते हैं फिर चेक करते हैं। फिर ये भी एक उम्र होती है 18 के आसपास, वो फिर अपनी बाउंड्रीज को चेक करते हैं कि अच्छा ये कितनी लेवरेज देंगे मुझको। तो वो उनकी उम्र है, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाला कुछ नहीं आता उनके साथ। हाँ, मुझे गुस्सा करना होता है तो मैं कर देती हूँ, कह देती हूँ बातें भी, क्लास में डांट भी पड़ती है बच्चों को, ऐसा चलता है। और मुझे मतलब ऐसा भी बोलते कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है और ऐसा है। लेकिन जब बच्चे क्लास में आ जाते हैं फाइनली मेरी में, तो उनको समझ आता है कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है यार ये कुछ नहीं कहेंगी, शी इज लाइक ठीक है, एकदम फनी है। पर हाँ, मतलब बच्चों को कुछ चीजें आपको बता के चलनी पड़ती हैं, कभी कभी आईना भी दिखाना पड़ता है, कभी कभी उनके वो रोज टिंटेड ग्लासेस उतार के दिखाना पड़ता है दुनिया को, देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो रहा है। सो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, और स्पेशली फीमेल्स को लेके, और वो भी लॉ पढ़ने जब आती हैं, तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आ चुकी होती हैं। क्योंकि करेक्ट। रूरल बैकग्राउंड का जब बच्चा वहां पे पढ़ने आता है, तो उसके लिए मैं नहीं चाहती कि एक भी परसेंट मेरी तरफ से कोई और प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी हो। हमको उनका एनेबलिंग एजेंट बनना चाहिए, जो मुझे समझ आता है, क्योंकि पहले ही वो बच्ची एक अ, अलग किस्म के बैकग्राउंड से आके वहां पे खड़ी हो रही है, और उसको वकील बनना है, जो नॉर्मली भी पेरेंट्स जिसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ये वकील बन जाएगी, वकालत करेगी, तो वो चीज है बच्चियों के साथ। तो फ्रस्ट्रेशन उनसे मुझे कोई नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। So, okay, frustration, anger, everything aside. So, when you're dealing again with young adults, especially in a law college, I don't think it's a bias. You are in Haryana, Mobi, you are in हम्म। it's a small town. Sonipat is a small town. लेकिन हम्म। मतलब when you're dealing with people and these kind of students, how do you help them understand अच्छा बाहर की दुनिया में ये हो रहा है, और this is how you should deal with things, because ये हमारे future lawyers हैं, like of the country, जो आगे चल के मतलब maybe they'll work with law firms, maybe they'll work with the courts, maybe they'll become professors like you. So where, like, what are the challenges that you face while you're doing that? सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है कि ये इंटीग्रेटेड लॉ है। 12th के बाद से एकदम से बच्चा हमारे पास आता है, तो वो एकदम से ट्रांजिशनल फेज उसका शुरू हो जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, और वो भी लॉ डिपार्टमेंट में पहुंच गए। तो पहली चीज तो उनको यही समझानी होती है कि जो लॉ है ना, आपको एम्पावरमेंट तो बहुत है, लेकिन एम्पावरमेंट और हेरासमेंट के बीच की लाइन जो है वो बहुत पतली है, बहुत बारीक है। तो वो लाइन समझानी उनको बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि लॉ पढ़ना या उसको समझना अपने आप में इतना एम्पावरिंग है कि कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, मिसयूज डेफिनेटली होने का हमें डर होता है। तो ये चीज हम पहली चीज उनको समझा के चलते हैं। दूसरी चीज हम समझा के ये भी चलते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है ना हर मामले में इंडिपेंडेंट हो। एम्पावरमेंट इज नॉलेज। एजुकेशन आप यहाँ लेने आए हैं तो वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ लॉ पढ़ के चले गए और आपको एक ही चीज आती है। तो लॉ आइसोलेशन में नहीं हो सकता। आप सोचे कि आप लॉ पढ़ लेंगे और आपको आ जाएगा प्रैक्टिस करना, या कोर्ट में बैठ जाएंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ आइसोलेशन में नहीं होगा। तो बाकी आप जितने भी डिसिप्लिन देखेंगे, चाहे आप सोशियोलॉजी देखेंगे, एथिक्स देखेंगे, मेडिकल साइंस, आपको हर चीज को लॉ से रिलेट करना पड़ेगा। और बच्चों को हमें हर चीज का थोड़ा 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 उनको दिखाना पड़ता है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा है दुनिया में। तो अगर तुम इतने से दायरे में से आए हो, तो तुमको इतना बड़ा दायरा देखना है। तो जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं,
मोहल्ला नहीं, शहर नहीं, मतलब एज अ नेशन आपको पूरा इकट्ठा सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, अपनी आंख कान हर टाइम खुले रखने, और वो खुला रखना हम धीरे धीरे सिखाते हैं, मतलब थ्रू Correct. एग्जाम्पल्स, थ्रू केसेस, व्हेन वी टीच देम इन द क्लास, सो वी टेल देम, लाइक हम उन्हें कई बार अक्सर, मतलब इन माय क्लास एटलीस्ट, आई गिव देम बुक्स टू रीड एज एन असाइनमेंट, कि आप ये बुक रिव्यू करके आएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने इससे क्या समझा। तो अगर मान लीजिए मैं उनको कोई फिलॉसफी बता रही हूँ, तो और मुझे उनको बताना है कि इंडिविजुअलिज्म भी एक फिलॉसफी है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, आप ये सारी चीजें तो आप पढ़ रहे हैं, बट सोशलिस्ट्स ने कैसे इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो है झुकाव किया कुछ लोगों का, कैसे वो आए, तो उन ऑथर्स के बारे में उनको पढ़ना, एटलस श्रग्ड है या द फाउंटेन हेड है, तो ये किताबों को इनको इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि बच्चों ने अक्सर उनके जहां से वो आई है वहां पर नहीं होती है किताबों के Correct. बारे में बात। तो मुझे लगता है कि उनका जो सीमित दायरा है उसको बड़ा करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने सोचा समझा है वो ये है कि उन्हें किताबें पढ़ना सिखाओ, अखबार के एडिटोरियल्स पढ़ना सिखाना, ये चीजें हम जरूर करते हैं। सो दिस हेल्प्स देम इवेंचुअली, और हमें लगता है कि अगर उनमें से 2 4 10 भी अगर करेंगे तो वो सोसाइटी में जाके इवेंचुअली फर्क पड़ेगा। That's interesting. Matlab, it sounds tough. Not traditionally, but in a very subtle way, you're also parenting them, like hand holding, yeah, हम्म। matlab, guidance. So हम्म। you're actually guiding two set of kids. One your biological, and one हम्म। who you teach in the class. Guilt आती है कभी? हम्म। Like on which side? Like I नहीं, mean, obviously you नहीं आई है. नहीं, मतलब मैं जो बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं उनको मैंने अभी तक अपने हर बैच को ये बोला है, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई टेल एवरीवन इन माय क्लास, कि मैंने 3 बच्चे बायोलॉजिकली पैदा किए हैं और तुम वो बच्चे हो जो मेरे दिल से पैदा हुए हो, सो यू आर नो लेस इम्पोर्टेंट, यू आर एज इम्पोर्टेंट एज दे आर। अगर मैं उनकी केयर कर रही हूँ तो आपके पेरेंट्स ने मेरे पास भी किसी भरोसे पे भेजा है। Correct. तो कुछ चीजें हम उन्हें, मतलब मैं कुछ चीजों में उतनी ही स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ जितने मैं अपने बच्चों के लिए होती हूँ, मे बी इवन मोर, बिकॉज आई कैन नॉट पेरेंट देम द वे आई वॉन्ट देम टू। मतलब वो टीचर क्या थे उस समय, उन्हें शायद हम अच्छे नहीं लगते, सख्त लग सकते हैं, बट इवेंचुअली उनको समझ में आ जाता। तो गिल्ट तो कभी नहीं आया। To stay in a place which is perceived to be a violent place state wise, मतलब गुंडागर्दी होती है, बहुत मतलब you know what I'm talking about, the perceived image of Haryana. So as a person, as a mother, as a woman who's working from there, two questions. One is, how do you feel as a working woman? How safe or how comfortable do you feel? And have you ever faced any uh, issues, or maybe cultural expectation wise, societal norm wise, which has impacted you maybe personally or professionally? So for the first question, I think Haryana is pretty safe. जो भी नोशन है वो शायद लैंग्वेज के कारण आता है, एक परसीव्ड नोशन है कि तो थोड़ा That's टफ why I है mentioned the word लैंग्वेज। perceive. यस, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब कुछ चीजों को लेके मैं देखती हूँ कि बहुत ही गलत एक इमेज बन गई है, जैसे देयर वाज दिस ना नाइस देस लाडू टाइप के कुछ प्रोग्राम्स थे कुछ समय पहले चले थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चियों को पढ़ाने का दर अच्छा है, और इट इज प्रिटी सेफ। मतलब सोसाइटी का एक अपना नॉर्म है। आप बेहुदा होकर यहाँ पर ये नहीं सोच सकते कि उसके कोई रिपरकशंस नहीं होंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको एक तहजीब और तरीके से रहना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो
ये जो परसेप्शन है ना कि इट इज अनसेफ फॉर गर्ल्स या अनसेफ फॉर वुमेन, ये तो खैर मैंने तो नहीं फेस किया, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ऐसा है। और थोड़ा और बहुत तो हर जगह, अगर आप उस चीज को लेके चलते हैं तो वो तो सतयुग में भी जिसको कहते हैं रावण था ही, तो इट इज ऑलवेज देयर, वो तो कुछ उसका हो नहीं सकता। और बट जितना मैंने अभी तक, आई विल बी 42 दिस ईयर, आई थिंक हरियाणा इज क्वाइट सेफ। बहुत और स्टेट से अगर मैं कंपेयर करती हूँ, इनफैक्ट बाहर के कुछ देशों से भी ज्यादा मुझे यहाँ सेफ फील होता है, शायद इसलिए क्योंकि आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, सो थोड़ा सा बायस्ड भी हो सकती हूँ मैं उस चीज को लेके। बट सिर्फ लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा रहता है लोगों को कि अरे बहुत खड़ी बोली है, तो वो तो है, लेकिन हरियाणवी ह्यूमर आप जो है ना उसके आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वी आर दी बेस्ट पीपल इन दैट सेंस, मतलब बहुत अर्दी ह्यूमर रहता है, और जिंदा दिल लोग हैं, और जल्दी हार नहीं मानते। और जो मार्शल कॉम की थ्योरी अगर आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हरियाणा पे फुल ऑन अप्लाई होती है। और आप सोच के देखें कि मतलब महाभारत से लेके मराठे तक सब यहीं लड़ने आए, पानीपत की सारी लड़ाई हमारे पास है, कुरुक्षेत्र की हमारे पास है, तो थोड़ा सा आपको हमें देना पड़ेगा वो कि भैया ठीक है, कंसेशन दे रहे हैं हम आपको। तो या पर हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। द सेकेंड क्वेश्चन वॉज, मैं उसका जवाब इसलिए शायद सही तरीके से नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं एक बहुत प्रिविलेज्ड प्लेस से बोलूंगी। आप सोचे मेरी पिछली 4 पुश्तें पढ़ी लिखी हैं, चारों जनरेशन में औरतों को काम करने की जो है के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, दे यूज टू ट्रैवल अलोन। और विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन को लेके बड़ा उनका एक ब्रॉड व्यू था, तो मैंने वो चीज कभी फेस नहीं की। मतलब मेरे लिए तो सुनने के But लिए do भी you नहीं think थी, other इनफैक्ट मेरी people शादी। in your सॉरी। vicinity, हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल in था, your जिस vicinity, यूनिवर्सिटी में मतलब मैं at जाती your हूँ। place? हाँ, बिल्कुल हैं। और वो जो तकलीफ है ना वो यूनिवर्सल है, आप उसको हरियाणा के साथ नहीं एसोसिएट कर सकते, वो हर जगह है। और जैसे जैसे एजुकेशन का एडवांसमेंट होगा वैसे वैसे वो चीजें हटती जाती हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैं रोहतक सोनीपत बेल्ट को बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ आर्य समाज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, तो उस कारण औरतें पिछले काफी टाइम से काफी, आप कह सकते हैं, बोल्ड हैं, और काफी उनको अलग तरीके से जीने की, स्वेच्छा से जीने की इजाजत भी रही है। और यहाँ पर क्योंकि विडोज का कोई सिस्टम नहीं था, हमारे यहाँ विडो री Hmm. मैरिज वॉज अ थिंग सिंस ऑलवेज, तो इसलिए भी कुछ चीजें जो हैं वो आई ही नहीं सोसाइटी के अंदर, वो प्रॉब्लम्स वो इश्यूज आए ही नहीं। तो नहीं, मैंने मेरे चारों तरफ अगर मैं देखती हूँ, मतलब मेरी the family I got married into and the family I was born into, मैंने किसी को नहीं देखा जिसको पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी या उनको कोई इस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा। Everybody is working in both the sides of the family. I have my sister-in-laws who are IAS, senior IAS हैं, doctors हैं, surgeons हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, तो मेरे को कभी मैंने देखा ही नहीं, तो मैं उस थॉट को शायद प्रोसेस सही तरीके से नहीं कर पाती हूँ। Perception पूरा change हो गया. How do you maintain your energy and motivation level with demanding work life and demanding family life? And with that, what self-care practices do you have in place? सी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, एनर्जी जो है ना वो कभी इधर रहती है और कभी इधर रहती है, बिल्कुल ऊपर नीचे, मतलब टोटली हाई टोटली लो। ऐसा भी होता है कि एकदम, मतलब ऐसा दिल करता है कि बस आज मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, आई हैव टू
लेट के रोना है एकदम वो पुरानी मूवी की हीरोइन की तरह, और कुछ नहीं करना है मुझको. But then I have certain people who help out जब ऐसी सिचुएशन होती है, एंड यू आर वन ऑफ देम. सो अभी कुछ दिन पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आपके पास हर तरह का फ्रेंड होना चाहिए, वो है ना कि हर हर एक फ्रेंड फ्रेंड जरूरी जरूरी होता होता है. है. एक्चुअली. सो वो हर एक फ्रेंड अलग अलग अपने काम करता है, तो वहां पे आपकी दोस्ती जो है ना, इस उम्र में आके दोस्ती आपका बहुत अच्छा वो रहती है. और सेल्फ केयर के नाम पे मुझे सिर्फ मेडिटेशन आता है, या मैं म्यूजिक सुनती हूँ, एनीथिंग दैट काम्स मी. और कभी कभी बिल्कुल जो होते हैं ना, अ, जैसे मेरी बेटी कहती है कि आप ऐसे डॉन जैसे गाने क्यों सुनते हो, लाइक ऑल पेप टॉक वाले गाने एकदम. तो उससे भी मेरा एकदम से हाँ ठीक है, जोश आ गया, अभी मैं जाके काम करती हूँ, अभी सब ठीक कर दूंगी. सो अच्छा तरीका है. तो मतलब मैंने उसका लिस्ट का नाम ही ये बनाया डॉन वाले गाने, बिकॉज माय डॉटर सेज दैट कि क्या डॉन वाले गाने सुनते हो, आप कोई गुंडे थोड़ी हो. बट वो आपको खुद को पेप अप करने का तरीका है. आई नीड दैट लिस्ट फ्रॉम यू. मतलब अभी तक मुझे हम्म. लगता था कि आई शुड लिसन टू सॉफ्ट गाने, calming songs, but I like this idea. हाँ, जैसे जिम में जाते हैं हम लोग, तो जिम में जाते हैं तो देखा ना, वो बहुत ज्यादा बीट वाला या बहुत ज्यादा बेस वाला गाना रहता है उनका. सो व्हाई दैट इज बिकॉज इट एक पेप टॉक जैसा ही रहता है वो, आपकी आपको एकदम से एनर्जी आती है कि हाँ ये तो करना ही कर. पंपिंग के लिए चाहिए होता है ना, तो वो सेल्फ पंपिंग है कि अरे मैं खुद को हैंडल दिस. I मेडिटेशन के लिए तो आई हैव नेवर लर्नड मेडिटेशन. इट जस्ट इट वाज समथिंग दैट वाज जस्ट देयर. so when you're trying to balance so many things, being a working person, teaching, how has this impacted your parenting technique? Or See, I think parenting is something which comes naturally to you. बहुत ऐसा कोई टेक्निक जैसा मैंने कभी नहीं सोचा कि होती है या होनी चाहिए, honestly. एंड कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है. फ्रस्ट्रेशन इस चीज पे होता है कि आपको एक चीज करनी है, वो पूरी नहीं हुई है, और दूसरी शुरू हो गई है. तो बच्चों के साथ कभी कभी मान लीजिए आपका टैरो का स्लॉट बुक्ड है, और आपको वो करना ही करना है. तो और उसके दौरान आपके बच्चे को आपका टाइम चाहिए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आती है. इट इज वेरी नेचुरल. true, और उसके लिए मेरे पास कोई मैं मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टेक्निक होती है. उसमें सिर्फ एक ही टेक्निक है कि जब जो प्रायोरिटी है उसको करो, और सामने वाले से माफी मांग लो कि भैया अभी मेरा बच्चा बीमार है, आपको कल का स्लॉट भी दे देंगे या रात का स्लॉट देंगे, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. या आप अपने बच्चे को समझा सकते हो कि बेटा मम्मा इज बिजी फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर. तो उसमें कोई ऐसा मतलब मुझे कोई ऐसी टेक्निक नहीं मिली कि मैं अल्टीमेटली मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज और बैलेंस. कभी कुछ सही होगा, कभी कुछ सही होगा. गो विद द फ्लो. ऐसे स्लॉट में रख के आप लाइफ को नहीं चल सकते कि मैंने 6 बजे के स्लॉट में ये रख दिया है, अभी ये नहीं हिलेगा. अभी उसमें कोई अगर उससे ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है तो आपको वो हिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो. तो अगर आप उतना बंद जाएंगे तो उसमें आपको तकलीफ ही होगी कुछ, और उसका इलाज ही नहीं है. देयर इज नो वे अराउंड इट. I agree. Like we are doing this at a very odd time, the recording, and my kid is running idhar se udhar, and I'm like, you saw me moving my head, right? हम्म. So he's running, and I'm like, okay, it's fine. क्या कर सकते एंड इन माय केस एवरीबडी हैज ओपन द डोर एंड झांको कि आज क्या हो रहा है. that happens. I मतलब this is the mom life. मतलब आप कभी यस. अकेले नहीं हो. You're never alone. हाँ, वो मी टाइम, क्वाइट टाइम जो है ना, वो उसके लिए आपको मतलब वो अलग से स्लॉट होता है आपका जीवन का. मतलब ये हालात आ जाते हैं. एंड विथ 3 किड्स आई एम टेलिंग यू, आई हैव हैड अ टाइम कि मतलब मुझे बाहर ये नहीं पता होता कि दिन रात क्या हो रहा है, बिकॉज माई बेबी वॉज वेरी यंग एंड ही वॉज वेरी अनवेल. एंड द प्रायोरिटी वॉज टू ही वॉज द ओनली प्रायोरिटी एट दैट टाइम. तो मेरी डॉटर्स आ रही हैं तो मुझे पता चला अच्छा शाम के 6 बज गए हैं.
क्योंकि अभी तो मैं तो उसको हिलाए जा रही हूँ सनवेल, तो उसको शांति चाहिए, तो वो आप फुल टाइम वाइब्रेशन मोड पे चल रहे हो कि भैया तुमको ऐसे अच्छा लग रहा था, ऐसे सही। बट आई थिंक एवरीथिंग गोज ऑन, वो चलता रहता है। आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा अगर अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल के उसको स्लॉट्स में रखने की जब कोशिश करते हैं ना, तो प्रॉब्लम आती है। स्लॉट आपको सिर्फ यही बनाने हैं कि एक आधी कोई आप एक्सरसाइज कर सके और अपने लिए कोई 10 मिनट निकाल सके जहां आपको शांति मिले। इसके अलावा आपको किसी स्लॉट की जरूरत नहीं होती। अभी अगर आप सोचेंगे कि मैं तो सुबह 6 बजे उठकर ही खाना बनाऊंगी, तो वो कभी कभी नहीं भी होगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ और मैनेज करना पड़ सकता है। अगर आपको सुबह 7:30 ऑफिस निकलना ही है, देर इज नो अदर ऑप्शन, तो आप रात को सब्जी भी काटेंगे, हो सकता है छोंका भी बना के रखे, सुबह उनको मिक्स करके सारा बना के बच्चे को फटाफट लंच आप दे देंगे। तो ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल्स के साथ आप पेरेंटिंग नहीं कर सकते। यू True. हैव टू मेक द रूल्स एज यू गो, कि अभी ऐसा बढ़िया लग रहा है तो ऐसा कर लो, ये वाला बेटर प्लान लग रहा है तो इस पे स्विच कर जाओ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मेरा पेरेंटिंग में एटलीस्ट मुझे यही समझ में आया कि फन पेरेंट, बिकॉज और फन पेरेंट अक्सर वही फन होता वाला होता है जिस जो कम समय दे रहा होता है बच्चों को। जो ज्यादा प्रेजेंट पेरेंट होगा ना, वो हमेशा डिसिप्लिन वाला होगा। I agree. ये एक बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल एक सब जगह यही होता है। इफ इट इज द फादर हु इज मोर प्रेजेंट, तो वो स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि बच्चों के पूरे दिन के कांड तो उन्हीं को झेलने हैं। वो फन You can't पेरेंट be को नहीं fun झेलने, then. उसको तो 15 मिनट आना है, फन करना है और चले जाना है। उनका तो हो गया। बाकी सब तो मम्मा का है, या जो भी मतलब डिसिप्लिन ला रहा है उस सारे सिनारियों में। बट हाँ, मतलब ऐसा कोई मेरा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसा पेरेंटिंग टेक्निक है सिवाय इसके कि गो विद द फ्लो। स्लॉट्स चेंज हो सकते हैं और जब जो प्रायोरिटी है वो कर लो। अगर हो सकता है एक दिन आपको बच्चे को मैगी खिलानी पड़े, सो विच इज फाइन। अगर या आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़े, विच इज ऑल्सो फाइन। Correct. अगर बच्चे का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम है, वो रो रहा है और आप कह रहे हैं नहीं आज तो मैं खीर पूरी ही बनाऊंगी, तो वो आपकी कोई पेरेंटिंग नहीं है। वहां पे इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है। खीर पूरी ना बने कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे बन जाएगी, नहीं बनेगी पूरा हफ्ता नहीं बनेगी, साल नहीं बनेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो या Yes. How do you balance, everything? How do you manage to do so many things, maintain your sanity, and move towards personal growth, whatever that personal growth is? पर्सनल ग्रोथ का ना चेंज होता रहता है। मतलब किसी साल में कुछ हो जाता है, किसी साल में आपको लगता है इस साल हेल्थ ही प्रायोरिटी है, इस साल बच्चे प्रायोरिटी हैं। और उसको बैलेंस का जो है ना उस वक्त पे जैसे अभी पीछे मैंने मेरा सारा जो इम्पोर्टेंट, If you could look back, पीछे like in perspective, तो what advice would you give a younger critic? By younger, it can be, I mean, you can choose. आप choose कर लो, whatever age you want to choose. It could be, 3 years back, 39-year-old Kritika, या 3-year-old Kritika, या whatever. सी मतलब हर साल ना मैं पिछले साल वाली कृतिका को कुछ नई सलाह दे सकती हूँ, हालात ये हैं। I'm sure. लेकिन हाँ, कि यार ये वाला तू बहुत अच्छा कर सकती थी, क्या तूने ये किया। मतलब लोन लेने से लेके और पढ़ाई की कुछ किताब देखी, ये साल ये तूने पिछले साल पढ़ी होती किताब, क्या ज्ञानवती होती तू। पर चलो इस साल पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो वो हर साल है मेरे पास सलाह देने के लिए ना अपने आप को कुछ। पर एक सलाह जो मैं आई वॉज वेरी इनसिक्योर अपनी लुक्स को लेके, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कभी वैनिटी नहीं सिखाई गई। Hmm. मतलब हैव यू सीन दैट मूवी शैलो हॉल करके है, तो उसमें उसको वो नजर ही नहीं आता था कि उसके अंदर कोई फ्लॉ है। आई एम दैट पर्सन, मुझको नजर ही नहीं आता था। मुझे लगता था इसकी भी दो आंख है, नाक है, मुंह है, बाल है, सब है, नॉर्मल ह्यूमन। बिकॉज माई मदर वॉज लाइक दैट, सुंदर क्या होता है, सब सुंदर है। एंड आई वॉज सो इनसिक्योर कि मुझे लगता था मेरे अलावा सब लोग सुंदर है।
हालांकि मेरी मदर ने उसको बड़े पॉजिटिव लाइट में सिखाने की कोशिश की, पर मैंने उसको अपने परसेप्शन में ढाला। भैया ऐसा तेरी मम्मी बेचारी कुछ कह नहीं पा रही है क्योंकि बीइंग मम्मी लेकिन सत्य यह है। तो आई वॉज वेरी इनसिक्योर। फिर बाद में समझ में, सच में उसको एम्ब्यू करने का समय आया तो समझ में आया कि नहीं, शायद बहुत अंदर होती है आपकी खूबसूरती। तो वो मैं अपनी उस 18 साल वाली कृतिका को भी ये बताना चाहती थी, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल no matter your weight. I was very thin, so I was very very conscious of the fact. Or small hair, completely tomboy, and I was like, क्या यार, क्या जीवन है यहाँ लोग इतने अच्छे लग रहे हैं लुक एट मी। एंड अभी लगता है कि वो कई मायने नहीं थे उन चीजों के। एट एवरी एज आप अलग तरह के खूबसूरत होते हैं, और इवेंचुअली आपकी खूबसूरती आपकी बुद्धि में होती है कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या समाज को वापस दिया, दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल। और एक ये बात समझ में आई कि दुनिया की जो परफेक्शन है वो आपकी परफेक्शन से अलग हो सकती है, बट यू क्रिएट योर ओन परफेक्शन। I love that line. Last question before we go. To all the women, all the mothers who will be watching this or listening to this, what advice would you give them? Especially to women who are trying to uh, navigate through, say, difficult motherhoods, and then they want to start a career maybe once their kids are older, because you are in that phase, like one of your child is almost 16. So मतलब you are in that two phases, जहाँ एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा बड़ा है. So you don't know, like if your child, if you have just one child who was 5, तो मेंटालिटी अलग होती है कि हाँ पूरा टाइम बच्चे को देना है. When you have that independent, almost independent at 16, then you are like कि now I want to do something for myself. So I mean वो mentality आ जाती है कि मतलब बस now my child is independent, now what do I do? So in that kind of a scenario, मतलब as somebody who's wiser, somebody who's been doing so many things, dealing with young adults in workplace, dealing with a young adult at home, like what advice would you give women who want to start working या start their careers, but they are not able to decide कि क्या करना है, कि कैसे करना है या कहाँ से करना है? सी आपकी एग्जिस्टेंस का बी ऑल एंड ऑल बच्चे नहीं हो सकते। इवेंचुअली वो अपनी अलग दुनिया कायम करेंगे। आप उस दुनिया का हिस्सा होंगे, दुनिया नहीं होंगे। ये आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। जब आपका बच्चा चाहे 1 साल का है और चाहे 20 का है और चाहे 30 का है, दिस इज समथिंग दैट एवरी मदर नीड्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग उसी मानसिकता से आके करते हैं। देयर विल बी अ टाइम जब आपके बच्चों को आपकी जरूरत नहीं होगी किसी भी चीज के लिए। उनकी हर चीज कहीं ना कहीं से पूरी हो रही होगी, अपनी उनकी फैमिलीज होंगी। तो आप अपने आप को कभी भी इतना गौण या इतना महत्वहीन मत करो कि इवेंचुअली जब आप अपने लिए कुछ करने की सोचो तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो। तो आपका बच्चा 1 साल का है, आपका दिल है शुरू करने का, तो आप छोटे लेवल पे शुरू करो, स्टार्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ। और आपका बच्चा आपको लगता है कॉलेज में आ गया है तो भी आप शुरू कर सकते हो। इट इज नेवर टू लेट। अगर आप किसी फेज से गुजर रहे हो, आपका बच्चा बीमार है, बहुत टफ मदरहुड है। सी आई हैड वेरी टफ 3 pregnancies, 3 tough deliveries. I had been through hell actually, बट वो निकल जाता है। तो ये एक लाइन है कि दिस टू शेल पास। और गीता से, मैंने गीता को जब भी पढ़ा, मैंने सिर्फ एक शब्द जो है ना, मतलब एक्चुअली 2 शब्द हैं बट वो बहुत सही है, कि कृष्ण ने एसर्टिव डिप्लोमेसी का ये आपको सीख दिया है। तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, एंड एवरी मदर शुड डू दैट। आप सिर्फ चाइल्ड सेंट्रिक होकर नहीं रह सकते। एज अ मॉम भी आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप अपने बच्चे को क्या लेसन देंगे कि किसी दूसरे पर पूरी जिंदगी लुटा देना ही जीवन है। ये तो मैं नहीं चाहती मेरी बेटियों के लिए भी।
मेरी अपनी जिंदगी का भी कुछ हिस्से होने चाहिए. So it is very important for every mother to realize that eventually the kids are going to leave the nest, they'll fly away. So वो लोनली नेस्ट सिंड्रोम में नहीं पड़ना है. तो आज 1 साल का 1 महीने का है, जब एवरी टाइम इज द राइट टाइम. आपको जब लग रहा है कि आपको करना है, शुरू करिए. छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं ना कि फुल फ्लेजेड आप इतना बड़ा कुछ शुरू करें. छोटा करें. और दिस टू शिल पास, आई थिंक ये 2 जो है ना की मंत्रास होते हैं मॉम्स के लिए. बहुत टाइम आएगा, आपके बच्चे आपको बिल्कुल आपको लगेगा कि उसका करियर खत्म हो गया या कुछ नहीं सीख रहा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी. जो हम कई बार डिस्कस भी करते हैं ऐसी चीजें, बट वो सब निकल जाता है. वो मोमेंट्री होता है. आपको 24 घंटा लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते के बाद आपको कोई नया रास्ता मिल जाएगा और आपके बच्चे को भी, और आप निकल पड़ेंगे उस पर. सो दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स एंड इट इज द सेम फॉर द मॉम्स. उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, पर आपको बैलेंसिंग एक्ट अपना बहुत वर्ल्ड क्लास रखना पड़ेगा. और मदर इंडिया सिंड्रोम की हमें कोई जरूरत नहीं है कि आपने सब कुछ त्याग दिया. दैट इज समथिंग यू नो ये एक इमेज है जो बनाई जाती है कि आपको एक तरह से एक दायरे में बंद रखने के लिए, कि आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है. मतलब इट वोंट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द अदर वुमेन एंड फॉर योर ओन किड्स एज वेल. तो Right. अपनी जिंदगी जीते हुए आपने एक और जिंदगी को उम्दा बनाना है. तो इसीलिए एसर्टिव डिप्लोमेसी और बैलेंसिंग एक्ट होना बहुत जरूरी है. और 2 बातें जो मैंने कही, दिस टू शेल पास, निकल जाएगा. और बस बढ़ते चलो, 1 फुट एट अ टाइम. मतलब एक एक सीढ़ी जितना दिख रहा है उतना चलो. कभी कभी जिंदगी में ये भी सही होता है. 5 ईयर प्लान्स की कोई जरूरत नहीं है, वो इकोनॉमिक्स में अच्छे लगते हैं. लाइफ इज नॉट लाइक दैट. That is beautiful. Thank you so much, Kritika, for giving some very insightful answers to my simple questions. And मतलब मैंने इतना कुछ सीखा in during the recording. मतलब I always learned from you, but this was like recorded कि हाँ, you know, eternally recorded कि हाँ ये कृतिका ने बोला मुझे. So just as I have been enlightened, I'm sure everybody else who will listen to this will also feel enlightened. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. Thank you. Love you. Bye.